السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو سائنس اکیڈمی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے امپیکٹ آف کمبسشن آن دا انوائرمنٹ۔ کمبسشن جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، جلنے کا عمل، اس کو ہم بولتے ہیں کمبسشن، جس کے لیے آکسیجن نیسیسری ہے۔ اگر کمبسشن ہو رہی ہے تو اس کا ہمارے انوائرمنٹ پہ کیا ایفیکٹ جا رہا ہے۔ اب کمبسشن کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی فیول جب جلتا ہے تو یہ کمبسٹ ہو رہا ہے۔ اب فیول جل رہا ہے تو اس کے کچھ پروڈکٹس بھی بنیں گے، وہ پروڈکٹس ہمارے انوائرمنٹ کو کیسے خراب کرتے ہیں یا کیسے پولوٹ کرتے ہیں، کیسے انوائرمنٹل پولوشن کوز کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آپ کو بتایا گیا پروڈکٹ آف کمبسشن۔ کسی بھی فیول کی کمبسشن ہوتی ہے تو اس میں بننے والے پروڈکٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، یہاں پہ بنتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ یا نائٹرس آکسائڈ، واٹر ویپرز اینڈ میتھین۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، اب آپ کو پتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ بھی آپ کے لیے اتنی کوئی ہیلتھ فل نہیں ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی تو پلانٹس کو ضرورت ہوتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے ہمارے انوائرمنٹ کو ڈیٹوریٹ کر رہی ہے۔ تو اس کے ایفیکٹس دیکھیں، انکریز دا گرین ہاؤس ایفیکٹ وچ کوز دا گلوبل وارمنگ۔ کاربن ڈائی آکسائڈ یا نائٹرس آکسائڈ، یہ جتنے بھی بڑھیں گے یہ گرین ہاؤس گیسز ہیں، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس ایفیکٹ بڑھ رہا ہے، اور گلوبل وارمنگ مین ہماری کلائمیٹ کا یا ہماری ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ پھر کون سے پروڈکٹ بن رہے ہیں؟ کاربن مونو آکسائڈ اینڈ پارٹیکولیٹ میٹر، جیسے ڈسٹ ہے، سوٹ پارٹیکلز ہیں یا فیومز ہیں۔ اب یہ کاربن مونو آکسائڈ ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی نسبت زیادہ ڈینجرس ہے۔ Incomplete combustion produce carbon monoxide which is poisonous gas. Carbon monoxide and particulate cause smoke in the environment. اب یہاں پہ بات کی گئی ہے انکمپلیٹ کمبسشن۔ پہلے تو آپ دیکھیں کمپلیٹ اور انکمپلیٹ میں کیا ڈفرنس ہے۔ اگر تو آکسیجن کی وافر مقدار موجود ہے تو اس میں کمپلیٹ کمبسشن ہوگی۔ کمپلیٹ کمبسشن کے پروڈکٹس کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں، لیکن اگر آکسیجن ڈیفیشنسی ہو گئی تو اس وقت انکمپلیٹ کمبسشن ہوگی۔ انکمپلیٹ کمبسشن کے پروڈکٹ کاربن مونو آکسائڈ ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یا آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ کمپلیٹ کمبسشن میں یا انکمپلیٹ کمبسشن میں کیا ڈفرنس ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آکسیجن کی سپلائی ایکسیس ہے، آکسیجن بہت زیادہ ہے، تو تب کمبسشن ہو تو اس وقت بننے والا پروڈکٹ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگا، اس کو ہم بولیں گے کمپلیٹ کمبسشن۔ لیکن اگر آکسیجن کی سپلائی کم ہو جائے اس وقت انکمپلیٹ کمبسشن ہوگی اور اس کا پروڈکٹ کاربن مونو آکسائڈ بنے گا۔ کاربن مونو آکسائڈ کاربن ڈائی آکسائڈ کی نسبت زیادہ ہیزرڈوس یا زیادہ ہارمفل گیس ہے۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کنٹری میں اسموک کا ایشو ہے، تو اسموک کا ایشو زیادہ، اس کی ریزن کیا ہے؟ کاربن مونو آکسائڈ اور پارٹیکولیٹ ڈسٹ یا پارٹیکولیٹ میٹر ہیں جو آپ کے انوائرمنٹ میں اسموک کوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، کمبسشن کے پروڈکٹ میں سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹرک آکسائڈ ہے، وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز ہیں، یہ بھی اسموگ اور ایسڈ رین کوز کرتے ہیں۔ پھر جو اس کے پروڈکٹس آ جاتے ہیں، لیڈ ہے، سلفر ہے، ٹریس ایلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو کم تعداد میں پائے جائیں۔ لیڈ اینڈ سلفر آر دی پوٹینشیل کارسینوجینک۔ کارسینوجینک کا مطلب ہوتا ہے کینسر کوزنگ، وہ چیز جو کینسر کوز کرے اس کو ہم بولتے ہیں کارسینوجینک۔ Their existence in the environment cause the fatal diseases like cancer. Fatal diseases وہ diseases ہوتی ہیں جو eventually death تک لے جائیں۔ پھر combustion کے products میں آ جاتا ہے compound of hydrogen with fluorine, chlorine, bromine, iodine، یہ ساری gases اس میں ہو سکتی ہیں۔ These are the potential carcinogenic cause the global warming ہے، environment کو بھی خراب کر رہی ہیں، human health کو بھی یہ خراب کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ combustion کا جو عمل ہے وہ اگر ہمیں لیے helpful ہے، ہمیں فائدے دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انوائرمنٹ کو بھی ڈیٹوریٹ کر رہا ہے، ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کرنے کے ساتھ ہیومن ہیلتھ پہ بھی اس کے بیڈ ایفیکٹس ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا کیمیکل ایکویشن۔ اب کیمیکل ایکویشن کیا ہے؟ دا ریپریزنٹیشن آف دی کیمیکل ریئیکشن ان ٹرمز آف سمبلز، فارمولائی اینڈ سائن از کالڈ دا کیمیکل ایکویشن۔ ہم نے ابھی کیمیکل ریئیکشنز کی بات کی، تو کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے اس کو سمبل یا فارمولائی کی فارم میں شو کرنے کو ہم بول رہے ہیں کیمیکل ایکویشن۔ جیسے اگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے، سلفر اور آکسیجن ملتی ہیں اور سلفر ڈائی آکسائڈ گیس بن رہی ہے، تو یہ ایک کیمیکل ریئیکشن ہے اور یہ اس کی کیمیکل ایکویشن دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سلفر پلس آکسیجن مینس سلفر اور آکسیجن مل رہی ہیں۔ جیسے یہاں پہ سلفر کا سمبل ایس ہے، آکسیجن کا سمبل یہاں پہ O2 ہے، یہ دونوں آپس میں مل رہی ہیں اور سلفر ڈائی آکسائڈ گیس بن رہی ہے۔ دو ریئیکٹنٹس ہیں، ان کو شو کرنے کے لیے پلس کا سائن کیا اور ایرو شو کر رہا ہے کہ ہمارا ریئیکشن اس طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوا یہاں پہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے ہمارا پروڈکٹ ہے، جبکہ وہ سبسٹانس جو کیمیکل ریئیکشن میں حصہ لیتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ریئیکٹنٹ۔ تو سلفر اینڈ آکسیجن آر ریئیکٹنٹس۔
इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। एरो शो कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन इस तरफ पर फॉर्म हो रहा है और ये प्रोडक्ट्स होंगे। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सल्फर के साथ ये S लिखा है। S का मतलब होता है ये सॉलिड स्टेट में है, और इसके साथ G लिखा है, G का मतलब गैस है। इसी तरह जिंक के साथ S लिखा है, जिंक मेटल है, सॉलिड स्टेट में है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा, AQ का मतलब एक्वा मतलब पानी में उसका सोल्यूशन बना हुआ है, और जिंक क्लोराइड बनेगा एक्वल मतलब मोल्टन स्टेट में होगा, और हाइड्रोजन के साथ G मीन गैस है। अब यहाँ पे ये देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये 2 अटैच है। ये एक्चुअली इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा है। जैसे यहाँ पे देखें, द केमिकल इक्वेशन आल्सो शो द 1 मोल ऑफ जिंक 1 मोल। अब यहाँ पे जिंक के साथ कुछ नहीं है, तो हमें खुद से पता, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे 2 मोल्स है, लिखा हुआ 2 मोल। 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विद द 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। मोल क्या है, ग्राम एटम्स क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होती है, ये आप सब बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इसको इतना सा याद रख लें कि यहाँ पे ये 1 मोल है और ये 2 मोल्स है, रिएक्टेंट्स में है, रिएक्ट करते हैं और हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और प्रोडक्ट में जिंक क्लोराइड का 1 मोल और हाइड्रोजन का भी 1 मोल है। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की गई है। हमने पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, किसी भी सब्सटेंस में आने वाली वो चेंज जिसको रिवर्स किया जा सके, इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू फिजिकल बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, सम सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, सम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। अब जैसे कहा कि कोई सब्सटेंस सॉलिड में है, कुछ जो है वो लिक्विड में है, कुछ गैसियस में, तो एक्चुअली ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। या फिर किसी भी सब्सटेंस का कोई कलर हो सकता है, टेस्ट है, ऑर्डर मीन उसकी स्मेल है, डेंसिटी है, कोई चीज हार्ड है, सॉफ्ट है, ये सब की सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं, हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। हार्डनेस मीन किसी चीज का सख्तपन। हार्डनेस ऑफ द मटेरियल इज एबिलिटी टू विदस्टैंड स्क्रैचेस एंड वियर। मीन हार्डनेस का मतलब किसी चीज में कितना सख्तपन है कि उसके ऊपर स्क्रैचेस ना आ सके। अ सब्सटेंस कैन स्क्रैच ऑल अदर सब्सटेंस that are softer than it but cannot scratch those that are harder। कोई भी सब्सटेंस को हार्ड हम तब कहेंगे कि वो किसी दूसरी नरम चीज के ऊपर स्क्रैच डाल दे। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द 2 फॉर्म ऑफ कार्बन। अब डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन की 2 फॉर्म्स है। इसमें अब डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड कैन ओनली बी कट बाय अदर डायमंड। मीन डायमंड इतना हार्ड है कि कोई और मेटल इसको काट नहीं सकती है, तो डायमंड को काटने के लिए डायमंड ही यूज किया जाता है, जबकि ग्रेफाइट एक सॉफ्ट है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। अब जैसे यहाँ पे देख लें, ये डायमंड शो किया गया और ये ग्रेफाइट है। देखें दोनों में कितना डिफरेंस है, ये कितना सख्त है, हार्ड है, और जबकि ये देखें पाउडर फॉर्म में शो किया गया है। और यहाँ पे एक प्लास्टिक की बॉल है जिसके ऊपर आयरन नेल शो किया गया है। द आयरन नेल स्क्रैच द प्लास्टिक। अगर आयरन नेल प्लास्टिक को स्क्रैच कर रहा है तो इसका मतलब हुआ आयरन नेल की हार्डनेस ज्यादा है। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के हल होने की पावर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट is the maximum amount of that substance which can be dissolved in 100 gram of the solvent at a particular temperature and pressure। इससे पहले सॉल्युबिलिटी से पहले आपको 2 टर्म याद होनी चाहिए, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड सल्यूट एंड द सब्सटेंस दैट डिसॉल्विंग दैट सल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वो सब्सटेंस जिसको हम हल कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, कोई ग्रेन्स हैं, कोई शुगर हो सकती है या सॉल्ट है, उसको पानी में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल सल्यूट हैं। सल्यूट कम मिकदार में हल किया जाता है, जबकि सॉल्वेंट ये ज्यादा मिकदार में लिक्विड स्टेट में है, तो ये दोनों मिलके सोल्यूशन बनाएंगे। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी से क्या मुराद हुई कि कोई भी सब्सटेंस किसी लिक्विड स्टेट में किस हद तक हल हो सकता है, इसको इसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस कैन डिसॉल्व इन इट। आपने देखा है कि पानी में आप हर तरह का सोल्यूशन बना लेते हैं, ऑलमोस्ट सभी चीजें पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, तो इसलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। एक्टिविटी देखें जी। टेक द 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर इन अ बीकर
Add 10 ग्राम शुगर इन इट, शेक वेल एंड यूज। आपने बीकर लेना है, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी लेना है, उसमें 10 ग्राम आपने शुगर ऐड करनी है। तो आप उसके ऑब्जर्वेशन देखें। What happened to the sugar? शुगर को क्या होता है? इट डिजोल्व इन द वाटर। आपने खुद भी घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक गिलास में पानी लें, उसमें 1 चम्मच शुगर डालें, उसको हिलाएंगे चम्मच के साथ तो वो मिक्स हो जाएगी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ शुगर कॉल्ड? तो इसको हम बोलते हैं सोलिबिलिटी। मीन्स शुगर पानी में हल होगी, उसकी हल होने की ताकत है, उसकी हल होने की पावर है, इसको हम बोलते हैं सोलिबिलिटी। इज दिस सोलिबिलिटी अ फिजिकल प्रॉपर्टी? यस, सोलिबिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी है? क्योंकि आप इसको फिजिकल चेंज भी कर सकते हैं, इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस ला सकते हैं। अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की गई है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? किसी भी चीज का मेल्ट हो जाना। जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो चीज मेल्ट होती है उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। डेफिनेशन देखें, मेल्टिंग पॉइंट इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ सॉलिड एट विच इट बिगिंस टू मेल्ट। वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू करते हैं, इसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। एक और डेफिनेशन दी गई है, अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड स्टेट एट अ स्टैंडर्ड प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री। 0 डिग्री पे आपने देखा है कि बर्फ जो है वो बर्फ भी होती है, लेकिन साथ में थोड़ी थोड़ी वो मेल्ट भी हो रही है। तो इसको हमने क्या किया है, अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड स्टेट। तो इसको हम बोलते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। देखें क्या है बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है कि वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज बॉयल हो जाए उसको इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ लिक्विड एट विच इट बिगिंस टू बॉयल एंड कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। कोई भी चीज जब बॉयल होती है तो वो वेपराइज हो जाती है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। या इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। एग्जाम्पल दी गई है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, जिस तरह हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, इसी तरह अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होती हैं, किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हैं और इनके क्या क्या फायदे हैं हमारे लिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी की बात की गई है। रिएक्टिविटी की डेफिनेशन देखें, रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। मीन कोई भी सब्सटेंस कितना रिएक्टेड है, कितना इजीली वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है या उसमें वो केमिकली चेंज आ जाती है, उसको हम बोलते हैं उस सब्सटेंस की रिएक्टिविटी। एग्जाम्पल जैसे दी गई है डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग पाउडर। आप स्टूडेंट्स हैं, आप सबको पता है कि आपको बेकरी आइटम बहुत पसंद है, बेकरी आइटम्स खाते हैं, उसमें बेकिंग पाउडर यूज होता है। तो आपने देखा है कि केक बनाते हैं या ब्रेड है या कोई भी चीज़ है तो इनमें बेकिंग पाउडर यूज होता है। इस बेकिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो उसकी कंडीशन को चेंज कर देती है। अब इस बेकिंग पाउडर में होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे उस प्रोडक्ट को फ्लफी या पोरस या सॉफ्ट कर देती है। जैसे देखें, आपने देखा है ब्रेड हो या केक हो, सारे फूल जाते हैं, फ्लफी हो जाते हैं, तो ये उसकी रिएक्टिविटी है, केमिकल चेंज आ जाता है। फिर सेकंड एग्जांपल इसमें दी गई है ब्लीचिंग पाउडर की। जैसे क्लोरीन इज यूज इन द डिटर्जेंट एंड स्टेन रिमूवर ड्यू टू इट्स ब्लीचिंग नेचर। ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग लिक्विड कोई भी आप जैसे घरों में यूज करते हैं कि कपड़ों के ऊपर दाग लग गया तो उसको खत्म करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, तो वो भी ब्लीचिंग पाउडर उस कपड़े के ऊपर रिएक्ट करके वहां से वो स्टेन्स को खत्म कर देता है। तो ये उस ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्टिविटी है। तो this property of chlorine and other substance in the detergents is used for the cleaning, laundry and other washing purposes। तो ये उसकी रिएक्टिविटी है। आगे बात की गई है एसिडिटी की। अब एसिडिटी क्या होता है? The level of the acid in a substance is called acidity। यहाँ पे अब मैंने आपको एसिडिटी की डेफिनेशन बता दी है। द लेवल ऑफ द एसिड इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में कितना एसिड है वो उसको इसकी एसिडिटी बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो आपकी दी गई है एसिडिटी की एग्जांपल आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। ये HCl जैसे देखिए, एसिडिटी इन द स्टमक प्रोड्यूस ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस इज यूज इन द डाइजेशन ऑफ फूड। नेचुरली हमारे स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस होता है तो ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है। एसिडिटी प्रोड्यूस बाय एसिडिटी रेगुलेट हेल्प टू प्रिजर्व द ओरिजिनल टेस्ट एंड कलर ऑफ द फूड प्रोडक्ट। जैसे कुछ जो है चीज़ें जिनमें हम एसिड यूज करते हैं ताकि वो चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सके या उनका कलर चेंज ना हो। सिंपल सी एग्जांपल, जैसे घरों में आप अचार यूज करते हैं, अचार के अंदर कोई एसिड डाला जाता है जैसे सिरका।
تو وہ سرکہ ایک ایسڈ ہے جو اس اچار کو پریزرو کرتا ہے, اس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے, کوئی بیکٹیریا وغیرہ اس پہ ایکٹ نہیں کرتے. It also prevent the growth of the dangerous microorganism in preserved food product. جتنی بھی preserved food product ہے اگر ان میں ایسڈ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ مائکرو آرگنیزم گرو نہیں کر سکتے. نیکسٹ ہے جی فلیمیبلٹی. فلیمیبلٹی از دی ابلٹی آف دی سبسٹانس ٹو برن. کوئی بھی سبسٹانس کی کتنی ابلٹی ہے, وہ کتنی جلدی آگ پکڑتا ہے, اس کو ہم بولتے ہیں فلیمیبلٹی. برننگ آف ایسیٹیلین ود آکسیجن پروڈیوس دی ہائی ٹیمپریچر فلیم یوز فار دا ویلڈنگ اینڈ کٹنگ آف میٹلز. تو یہ آپ کو فلیمیبلٹی کی ایگزامپل دی گئی ہے برننگ آف دی ایسیٹیلین. میٹلز کی ویلڈنگ میں یا ان کو جوڑنے کے پروسیجر میں ایسیٹیلین فلیم یوز کیا جاتا ہے جو کہ میٹلز کی ویلڈنگ اور کٹنگ میں یوز ہوتا ہے. جی اسٹوڈنٹس, اگر آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے. اور اگر آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.